Hello to each and every one of you and welcome to Steven Sir Makes It Easy, where I'm doing my best to make sure that subjects related to accountancy and finance for which you view these lectures in the next few minutes are a little bit more simpler and digestible. Okay, very quickly before I get started with the aim, agenda and the objective for today, quick reminders. किस बारे में? First, if you have to get connected to us besides YouTube, you can always join us on Facebook, Instagram and on Twitter. Okay, the Telegram channel which has been mentioned above, please do join it so that the PDF of the question and answers of the entire chapter, whenever it comes to an end, doesn't matter what is your standard, whenever those lectures come to an end, it will be shared on the Telegram channel. Most importantly, constantly the lectures which are uploaded on the YouTube channel are notified through us on that Telegram channel. Yes, if you do subscribe to us, that would be very encouraging to us. It motivates us to perform better, and when you click the bell icon, YouTube will also send you the notification. अगर आपने बुक नहीं खरीदा है जिसमें से ये सोल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तो प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन, परचेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. एंड इफ यू हैव मिस्ड आउट द प्रीवियस लेक्चर, द कार्ड फॉर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड अबव. दैट इज इट. लेक्चर अभी शुरू होता है, वो मेरा ड्यूटी है जो मुझे करना पड़ता है. सो व्हाट डिड आई टीच यू लास्ट टाइम? वेल, for the last few lectures we have been doing analysis of financial statements, and specifically in the last lecture we learned and I taught you what is the vertical income statement. मतलब vertical revenue statement. Two accounts, trading account को उन्होंने vertical कर दिया, as well as P&L account को भी उन्होंने vertical कर दिया है. तो I repeat myself. So right now what you see is the P&L account, and what you already have seen previously, that was the trading account. Today what are we doing? Well, ये पूरी कहानी है. Okay, very importantly, ये पूरी कहानी vertical revenue statement की है. Today I am not solving a vertical revenue statement क्योंकि we have already done that last time. And very quickly, let me remind you, what did we do last time? Actually, ये question था. We did two questions last time. Okay, so you have two solutions. This question, you only listen to what I'm doing. In the next question, you join me in solving. So, we have already solved this. हाँ, मैंने क्या किया था? This was the question. इसमें, which is illustration 3, it said problem number 3, okay, कि आपको vertical करना है. हमने vertical किया. ये क्या है? पूरा vertical तो है, ऊपर से नीचे. I repeat, अगर मैं थोड़ा उस तरफ चला जाऊँ, ये vertical है. Today what am I doing? उसमें एक word add कर रहे. कौन सा word add कर रहे? Common size. You may, I think so, याद होगा. हाँ सर, ऐसा कुछ हमने सुना है. बैलेंस शीट में किया ना कॉमन साइज, जहाँ पे हमने ऑल अमाउंट्स को, ऑल दी अमाउंट्स ऊपर से लेके नीचे तक परसेंटेज में कन्वर्ट किए. हाँ, तो आज वही कर रहे. बट सर ऑलरेडी खत्म हो चुका है. नहीं, आई हैव थॉट यू इन बैलेंस शीट कॉमन साइज. टुडे आई एम टीचिंग यू इन रेवेन्यू स्टेटमेंट कॉमन साइज. सो होल्ड ऑन. बैलेंस शीट में सॉल्व कैसे किया था? वन नंबर was taken as base, B-A-S-E, base amount, okay, and then remaining amounts were converted into percentages. हाँ, तो ये ऊपर सेल से लेके नीचे का NP 80 तक, everything we will convert into percentage. क्यों? परसेंटेज में क्यों करना है? बिकॉज जो नॉर्मल जनता होती है ना, उन लोगों को ये बड़े बड़े भयानक नंबर्स समझ में नहीं आता है. अगर उन लोगों को, ओके, एग्जाम्पल, जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है, इलेक्शन का रिजल्ट, इट इज वेरी कॉमन दैट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन दे विल शो यू अ पाई चार्ट, अ चार्ट, एंड इन दैट चार्ट दे विल से ये पॉलिटिकल पार्टी को इतने प्रतिशत परसेंटेज,
ये पॉलिटिकल पार्टी को इतने प्रतिशत, एग्जैक्ट वोट्स नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो एग्जैक्ट वोट्स बोलने जाए इट विल टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम। 5,00,000, 10,000, 330, अरे बाबा कितना टाइम जाता है, सबके लिए थोड़ी बोलने वाले हैं वो। इट इज डिफिकल्ट टू इवन स्पीक एंड इट इज डिफिकल्ट टू इवन अंडरस्टैंड। सो परसेंटेज में बोलते हैं, लोग समझ जाते। सिमिलरली टुडे दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। लास्ट टाइम सोल्यूशन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये वाला कॉमन साइज में करके दे रहा हूं, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ब्रांड न्यू, हाँ वो वाला आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। सो राइट नाउ लेट मी अगेन शिफ्ट। फॉर्मूला क्या था? वेल आप देख लो यहां पे, अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। यू सी अमाउंट ऑफ द गिवन आइटम अपॉन बेस अमाउंट इनटू 100, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस अमाउंट बैलेंस शीट में तो टोटल फंड रेज्ड था, टोटल फंड एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट में ये इधर बेस अमाउंट क्या है? नेट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेट सेल्स इज कॉल्ड एज द बेस अमाउंट। आई होप यू कैन सी द ऊपर छोटा छोटा आया है, नॉट सेल्स, नेट सेल्स। एक मिनट, सो व्हाट्स द डिफरेंस? अरे बाबा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स, दैट इज kept as 100. I hope you can see there ऊपर 100, तो वो बेस है। बेस पे कंपैरिजन होते हैं, कैलकुलेशन होता है। हम लोग क्या सोच रहे हैं माय डियर, ऐसा सोचना है आपको कि 11 लाख 100 है। क्यों? क्योंकि वो नेट सेल्स है। बट सर वो सेल्स है, अरे ये सब में सेल्स एंड नेट सेल्स एक ही है। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज गलती मत करना इन एनी फ्यूचर क्वेश्चन कि नेट सेल्स का जो अमाउंट होता है ना वो 100 रखना। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज अ कोइंसिडेंस दैट बोथ आर द सेम। ओके, अभी क्या करने का है सर? ये बाकी का सब परसेंटेज ढूंढो। कैसे? अरे बाबा क्या बोला देखो, अमाउंट ऑफ द गिवन आइटम। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना है अमाउंट? 3,50,000 इंटू 100। ओके, इंटू 100 डिवाइड बाय बेस अमाउंट। अच्छा, तो बेस अमाउंट 11 लाख है, डिवाइड बाय 11 लाख, यस। अच्छा, परचेज का करूंगा तो क्या? 7 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस अमाउंट। नेक्स्ट 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस अमाउंट। वर्टिकल बन चुका है। आपको मैं सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, बिकॉज वर्टिकल को कॉमन साइज में करना है। कॉमन साइज मीन्स conversion, talking in percentages. Okay, so first thing, opening stock को कैसे करेंगे? opening stock को ही नहीं, अपन तो सबको करना है, but let me show you. हाँ, so if you can see there 3,50,000 into 100 divide by 11 lakh, वो divide by same है because the base amount is the same. Okay, 31.82. हाँ, तो if you go to the solution above, 31.82, that is how you convert into a percentage. Two decimal places. Then purchases. Okay, तो purchases के लिए आप formula लिख लो। What is that? 7 lakh upon 11 lakh into 100, 63.64। तो ये जाके solution में लिख लो, 63.64 वेजेस। तो चलो भाई, ऊपर वेजेस का आ गया, उसका अमाउंट लेना इंटू 100, 4.55%, 2 decimal places। क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव नहीं है, प्लीज। सम स्टूडेंट से सर आपने तो माइनस लिखा है। नहीं, इट इज सब्ट्रैक्शन, it is not a negative number. Okay, closing stock, I repeat very simply, is 2 lakh into 100 upon 11 lakh, 18.18। ऐसे करके one by one, by doing the formula, we are converting the amount into percentage. If somebody would ask me, sir ये percentage में मतलब हो क्या रहा है? तो ऐसा है कि sales, net sales, which is the main income of a company, वो 100% है। कोई आपसे पूछेगा, अच्छा तो ये ओपनिंग स्टॉक उसका सेल्स का कितना पार्ट, PART परसेंटेज होता है? 31.82%।
अच्छा तो ये परचेसेस कितना परसेंटेज होता है? 63 पॉइंट्स. एवरीथिंग इज बीइंग कंपेयर्ड इन एवरी फील्ड, इन एवरी क्लासरूम. देयर इज वन पर्सन हु परफॉर्म्स वेरी गुड, फर्स्ट रैंक. तो द अदर पर्सन बोलेगा अच्छा तू लाया इतना मार्क्स, अब देख मैं कितना लेके आएगा. सो आई रिपीट, इफ आई वांट टू बिकम बेटर आई हैव टू कंपेयर विद द बेस्ट. हाँ तो यहाँ पे वैसे ही कुछ है कि सेल्स 200 है ना, तो देख 50 वेजेस कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, COGS कितना है. सो यू आर फाइंडिंग आउट के सेल्स के कंपैरिजन में हाउ मच इज द अदर आइटम्स इन परसेंटेजेस. ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 9 lakhs. So let me solve that. Into 100 upon 11 lakh, 81.82. ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा एंड क्विकली वो भी 2 लाख है. 2 लाख ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक का आपने सॉल्व किया है. सो बेसिकली द परसेंटेज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट विल कम द सेम, क्योंकि 2 lakhs का परसेंटेज आपने ऑलरेडी कर दिया है 18.18. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू, मैं बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ कि आप ये कॉपी करोगे. इट्स ओके, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना था. नेक्स्ट सम जब मैं फ्रेश करूँगा पूरा, ओके, उसमें आप ज्वाइन करना मुझे. फिर ऑफिस का खर्चा है 1 लाख. ऑफिस का खर्चा उसको कन्वर्ट करो आप इंटू 100 अपॉन 11 लाख, 9.09. 9 पॉइंट, याद से प्रॉपरली उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा. थोड़ा मिस्टेक, बट मिस्टेक हो जाएगा. नेक्स्ट फाइनेंस था 20,000. 1.82 तो वो भी कन्वर्ट हो गया एक एक करके. फिर सेलिंग 50,000, सेलिंग 50,000. 4.55. Total operating expenses. What is total operating expenses? Well, कंपनी का खर्चा. ओके, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस रिलेटेड. सो 1,70,000 को अगर हम कन्वर्ट करें, एकदम ऊपर है आपको दिखाई देगा, 15.45%. 15.45%. देन कम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट. मैंने कहा था डिफरेंट पार्टीज, बैंक, लेंडर, गवर्नमेंट, सरकार, पब्लिक, शेयर होल्डर, ओके, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन डिफरेंट प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेंडर जो पैसे देता है, जो फाइनेंस देता है, वो पूछता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, बिकॉज ही वांट्स टू नो आपके बिजनेस में कितना मुनाफा होता है. उसके नीचे देर आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. अरे वो तो कभी कभार होता है, कभी कभार. बाकी का ऑपरेशंस होता है कनेक्टेड टू द बिजनेस. ओके, सो दैट इज 30,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट. उसका क्या, वेल सॉल्व कर देते हैं वो भी. हाँ, इफ यू नोटिस NPBT एंड NPAT भी मैंने वही लिखा है. ऐसा क्यों है, एक मिनट. हाँ, ऐसा क्यों है, बिकॉज इफ यू नोटिस उसके नीचे जो NPBT है और NPAT है, दे ऑल्सो 30,000. तो मतलब आंसर तो वही आएगा ना. हाँ, तो आंसर क्या आएगा, 2.73 फॉर द रिमेनिंग आइटम्स इन द लिस्ट. 2.73. सो दिस इज लास्ट टाइम्स सोल्यूशन. मैंने थोड़ा उसको एडिट किया एंड एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट. वेल, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया है टू टेल यू कि ये जो फॉर्मूला मेरे पीछे है, आई यूज द सेम फॉर्मूला इन द बैलेंस शीट. उसको मैंने कॉमन साइज में कन्वर्ट किया एंड नाउ आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला इन द इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट. क्या एक कॉलम एक्स्ट्रा कर लिया और परसेंटेज में कन्वर्ट किया. ये तो लास्ट टाइम की कहानी थी. प्रैक्टिस करने के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया. राइट नाउ हमारी ये कहानी को आगे लेके जाते हैं. सो अबाउ यू सी द क्वेश्चन विच इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर. नाउ देयर आर 2 years. प्लीज नोट, वी आर नॉट डूइंग कंपेरेटिव. कंपेरेटिव में 2 साल आता ही है, बट आज हम लोग कंपेरेटिव नहीं कर रहे. कंपेरेटिव
नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो कॉमन साइज में 1 साल भी आता है और 2 साल भी आता है। 1 साल आया तो उसके बाजू में उसका परसेंटेज कर लो, 2 साल आया तो उसके बाजू में उसका परसेंटेज कर लो। सो यू कैन सी, आई रिपीट, आप लोग फॉर्मेट देख सकते हो, 17%, 18%, दिस इज कॉमन साइज। कंपेरेटिव बिल्कुल अलग है। ओके, कंपेरेटिव में इंक्रीज डिक्रीज वो स्टोरी अलग है, उसका लुक अलग है, उसका कैलकुलेशन अलग है। सो दिस वन अगेन द क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक सब आपको बता दिया है। क्या है भैया देख लो, सेल्स है, तो वेन एवर यू प्रिपेयर यू कैन ऑलवेज पॉज, ये फॉर्मेट बना लो, कॉमन साइज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18। पहले हम लोग वर्टिकल कर लेंगे, बाद में कॉमन साइज करेंगे, दैट मीन्स परसेंटेज विल डू लेटर। ओके, तो पहले सेल्स लिख लेते हैं। ओके, 2,50,000, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अरे कॉमन साइज में ये जो लाइन है ये बेस है, मतलब लेटर ये 100 बनेगा, 2,00,100 बनेगा फर्स्ट ईयर के लिए एंड 2,50,100 बनेगा सेकेंड। 100 मतलब मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इन डिटेल बताया था व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। इन दिस प्रॉब्लम अबाउ वेरी सिंपल दे हैव केप्ट, सीधा आंसर दिया आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। यू डू नॉट लाइक लास्ट टाइम, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेट मी शो यू व्हाट डू आई मीन बाय लास्ट टाइम। देखो भाई, ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरियज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बहुत लंबी कहानी है। बट बिकॉज ये जो सम है द वन दैट यू आर सॉल्विंग उसमें 2 साल है, तो एग्जामिनर ने आपका थोड़ा हेल्प कर दिया। उसने क्या बोला, नहीं आपको पूरा रामायण नहीं देता हूँ, आंसर देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो आप माइनस करो। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 मतलब आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, एंड 1,70,000। तो फिर आएगा क्या? आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो आई रिपीट, शॉर्टकट। भाई शॉर्टकट हमने नहीं लिया, उन्होंने खुद लिया है शॉर्टकट, तो हमारा काम जल्दी हो गया। 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 80,000 आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट डू यू गेट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के कनेक्शन के खर्चे, वो ABC है। बट राइट नाउ आपको पहला ऑफिस का खर्चा है, तो मैं लिख देता हूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 4,000 and 6,000, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अनदर वन फाइनेंस, बट फाइनेंस तो उन्होंने दिया नहीं। देखो ना, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अच्छा, जो है लिख देता हूं मैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं 6,000, 1,000। देन हम लोग ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं, टोटल। ओके, तो ये 10,000 हो जाएगा and 7,000 total. Then what to do? Well, to remind you, please look, gross profit से 50,000 आप माइनस करो, क्योंकि आपने लेस लिखा ना, मतलब प्लीज नोटिस, आई एम नॉट सेइंग इट, लिखा है वहां पे लेस 10,000, what will you get? Operating profit. But in this sum there is no non-operating income, non-operating expense, नहीं है। What example I gave last time? Loss by fire, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों? ये हर दिन नहीं होता, ये आग हर दिन नहीं लगती। लॉटरी इनकम, बट वो थोड़ी बिजनेस का इनकम है, वो तो कभी कभी तुमको लगेगा, मे बी तुम्हारे पूरे लाइफ में एक बार तुमको लॉटरी लगेगा। हाँ, वो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। अब नहीं है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भी नहीं है तो वही होगा नेट प्रॉफिट। देयर इज नो नीड टू राइट द एंटायर फॉर्मेट, वैसे भी एक्स्ट्रा लाइंस चली जाएगी और उसमें वैसे भी नंबर्स नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो सेम आएंगे। ओके, सो 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट लेस 10,000 कितना? 40,000। 80,000 माइनस 7,000 73,000 क्या है आंसर? पूरा सॉल्व हो गया? नहीं, पूरा सॉल्व नहीं हो गया। दिस क्वेश्चन वी हैव नाउ कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल. Now we have to convert into common size. How do you do that? We use the percentage formula.
दोनों साल का साथ में करने का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज फर्स्ट ईयर का बेस एंड सेकेंड ईयर का बेस, फर्स्ट ईयर का बेस इज 2 लाख, तो डिविजन विद 2 लाख होगा। सेकेंड ईयर का बेस इज 2.5 लाख, मतलब 2,50,000, तो डिविजन, तो यू कैन नॉट डू टूगेदर। ओके, लेट मी डू वन थिंग, फर्स्ट ईयर का सॉल्व करता हूं, देन आई डू द सेकेंड ईयर। सो थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं मैं। कैसे? आई विल सॉल्व द फर्स्ट ईयर फुल्ली एंड देन write the percentages here one by one. Okay, what do I mean by that? तो पहले तो भाई सेल्स, नेट सेल्स इज 100. ओके, 100. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000. एक मिनट, हाँ, आई कैन शिफ्ट ताकि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा. आई विल नॉट डिस्टर्ब यू. So the base is 2 lakh. 75%. तो लिख दिया. Gross profit, it's a small sum, cute looking, 50,000. 50,000 upon 2 lakh. 25%. ऑफिस कितना? 4,000. अच्छा, परसेंटेज में दिस इज रफ वर्क. यहाँ पे आप वर्डिंग्स का शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो. ऑब्वियसली नंबर्स का नहीं कर सकते, वर्डिंग्स का कर सकते हो. हाँ, कितना? 2%. Percentage we are not writing because above we have written in the column percentage. 6,000 selling का, 6,000 selling का अपॉन 2 लाख इंटू 100. उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बिकॉज सेलिंग मीन्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, घर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना. 3%. व्हेन इट इज नॉट इन डेसिमल्स इट्स वेरी झटपट. डेसिमल्स में क्या है, यू हैव टू ऑलवेज थिंक राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 10,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. 10,000 upon 2 lakh into 100. 5%. 5. Again डेसिमल में नहीं है तो जल्दी हो जाता है. एंड 40,000. अब आओ, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, वो एनपीबीटी भी है, वो एनपीएटी भी है. 20%. ओके, व्हाट एम आई डूइंग इज, मैं कुछ पलों के लिए, हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट यू कैन आराम से, माय रिक्वेस्ट, कॉपी इट. ओके, एंड इससे बड़ा रिक्वेस्ट है, कॉपी करने के बाद ना थोड़ा अपने तरफ से कैलकुलेशन भी करना. मैं ये गेस कर रहा हूँ कि whenever this kind of a question does come, if not in 12th standard, even though in future, okay, तभी कैलसी का सहारा होगा, बट अगर 12th में आता है सिंपल रहेगा. ऐसे राउंड ऑफ होके 25, 75, 80. ओके, 20%. फर्स्ट ईयर पहले वर्टिकल में किया, फिर कॉमन साइज. नाउ अभी सेकेंड ईयर भी है ना, उसका बेस अलग है. कितना है बेस? 2,50,000. अच्छा, पहले वो 100 है, 2,50,000, तो अभी मेमोरी से 2 लाख निकाल दो, रिमूव. ओके, सो वट एवर वी सॉल्व, द डिनोमिनेटर विल बी 2,50,000. ओके, आई एम होपिंग दैट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन लिख लिया. लेट मी स्विच टू सेकेंड ईयर. पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द फुल लिस्ट अगेन, बट आप नोटिस करोगे 31,318, पहले था 31,370. 1,70,000. 68%. सो इट इज 2,50,000 के ऊपर 68%. देन ग्रॉस प्रॉफिट 80,000. ग्रॉस प्रॉफिट 80,000. 3, 2.
32%. 32%. Then office, it's quick क्योंकि there are barely 6-7 lines का solution है, but because it is 2 years ना, so the examiner लंबा चौड़ा ना vertically करने की जगह पे horizontal कर दिया उसने. Office 6,000, office 6,000, but upon 2,50,000. So I'm looking at my screen. 2.4. Okay, तो 6,000 को convert करोगे तो 2.4. फिर सेलिंग का खर्चा, फाइनेंस नहीं है तो हम लोग ने लिखा नहीं. इनफैक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच वाज एक्स्ट्रा, वो नहीं लिखा. सो टाइम हमारा बच गया. 1,000 जो सेलिंग का खर्चा है अपॉन 2,50,000. 0.4. 0.4. फिर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 7,000. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 7,000. $2.8. 2.8. And the cherry on the cake, the very last calculation, which is operating profit, 73,000. I repeat before I do that, what have we done today? Well, एक कदम आगे गए हैं. लास्ट टाइम तक हमने वर्टिकल स्टेटमेंट सीखा, आज उसी वर्टिकल को हमने कॉमन साइज में कन्वर्ट किया. सो व्हेन दे से एनालिसिस में कॉमन साइज आता है, बट इट डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या है. इफ इट इज बैलेंस शीट तो आप बैलेंस शीट को पहले वर्टिकल करो, बाद में कॉमन साइज. इफ इट इज इनकम स्टेटमेंट, मतलब रेवेन्यू स्टेटमेंट इसको कहते हैं, पहले वर्टिकल में करो, बाद में कॉमन साइज. ओके, तो 73,000. 73,000 ऑपरेटिंग NPBT, NPAT 29.2. 29.2. That's the very last number जो मुझको प्रेजेंट करना था, जो आपको लिखना था. That's pretty much it for the day. Very quickly, a quick reminder, lectures will continue. Obviously, we will go right up to the end of this particular chapter. In that there are multiple more things that I have got to teach you. Don't worry about it. थोड़ा थोड़ा करके अपनी गाड़ी आगे जाएगी. Do remember, in the description as well as on the Telegram channel, at the end of the chapter, the PDF of the question and the answer will be available. It will be shared. You can always download it and use it for your future. दूसरा, if you did understand the explanation, मतलब भेजे के ऊपर नहीं, भेजे के अंदर चला गया, please do like the lecture video and share कर लेना अपने दोस्तों के साथ में, so that your friends also who maybe they have not learned this chapter, okay, but कहाँ ना कहाँ पे उनको फ्यूचर में काम आ जाएगा. अगर फ्यूचर पढ़ाई आप कंटिन्यू करते हो तो शेयर ज़रूर कीजिए. ओके, एंड अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो. we'll do our best to respond to the comment or maybe include the doubt explanation in the next video. Do subscribe to the channel and also press the bell icon so that any notification concerning the upload of a lecture video is never missed out by you. Okay, that is it for today. Jaldi milegi for the continuation of this particular analysis of financial statement. तब तक अपना ख्याल रखना. Take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. जल्दी मिलेगी. Till that time, good day to all of you. Bye bye. God bless.